welcome. You're watching Next IS English. Today we're going to talk about a very important issue. It is again a good news for us, all the Indians. India has made it to the top 4 countries and has become the 4th largest economy, leaving Japan behind. Yes, you're right. India has left Japan behind when it comes to economy, and per capita, definitely it is less, but it has become the 4th largest economy, and India's GDP per capita stood at $2,694 in 2024, according to the latest World Bank figures, which is 12 times lower than Japan's, which was $32,487, and 20 times lower than Germany's, which was $56,103. All right, but India has still become the 4th largest economy. Let us have a look at how it happened and what all happened. All right. So the global economic ranking according to the nominal GDP is this. First, United States with $28 trillion economy. Then China with $18 trillion economy. Then Germany with $4.6 trillion economy, and here comes India with $4.18 trillion economy, and then comes Japan with $4.1 trillion. Even though the difference is not huge here, but definitely it has surpassed Japan. And now let us look at the rise over time, how, in what time, in what years, what was the ranking of India. So in 2014, India stood at the 10th largest economy. In 2017, India was 7th largest economy. Then in 2022, it was the 5th largest. It overtook United Kingdom. And in 2025, it is the 4th largest, overtook Japan. And India's neighboring countries, let us look at their global ranking as well. So China, as you can see, is on number 2. Then Bangladesh is 35th. All right, Bangladesh is 35th. Pakistan is approximately 44th. Sri Lanka is approximately 75th, and Nepal is 100 plus. So this is the condition of India's neighboring countries. Of course, China is ahead of India, but still these are the countries which are the neighboring countries, and this is the condition. Moving forward, let us talk about the GDP. What exactly is GDP and India's latest GDP status? So GDP क्या चीज है? आप देखिए, Gross Domestic Product is the total monetary value of all final goods and services produced within the country's border in a given year. For example, GDP वो सारी चीजें हैं जो एक कंट्री में बनती हैं और उनको बनने के बाद जो भी उनका प्राइस आता है उसका टोटल जीडीपी है. ठीक है, जितनी भी चीजें एक कंट्री में बन रही हैं साल में, उसमें जो भी उनका प्राइस आता है वो टोटल इज द जीडीपी. ऑलराइट, नाउ जितना भी चीजें कंट्री में बनी हैं वो किस चीज से ड्राइव की जाएंगी? सबसे पहली चीज है पॉपुलेशन. ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने वाली हूं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडियाज मैसिव ग्रोथ. द नंबर 1 रीजन इज पॉपुलेशन. जहां ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, जहां ज्यादा लोग होंगे, वहां उतनी ज्यादा चीजों की डिमांड होगी और उतनी ही ज्यादा चीजें बनेंगी. जितनी ज्यादा चीजें बनेंगी उतनी ज्यादा चीजें बिकेंगी. जितनी ज्यादा चीजें बिकेंगी उतना ज्यादा होगा आपका GDP. दिस इज सिंपल इकोनॉमी. ये आपको समझने की जरूरत है कि ठीक है, इंडिया ये दिस इज अ गुड मोमेंट, दिस इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर इंडिया, बट दिस इज द रियलिटी ऑल्सो. इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड दैट इज व्हाई द GDP इज हाई. ऑलराइट, सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? जीडीपी साइज ऑफ द इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफ्लेक्ट करता है, और गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू स्पेंड. अब जीडीपी क्यों मैटर करता है? यूज्ड टू रैंक कंट्रीज ग्लोबली. इसके तहत कंट्रीज को रैंक किया जाता है. इंडिकेट करता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, नॉट इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी को. हेल्प करता है किसमें? बजट की प्लानिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, इंटरनेशनल कंपैरिजंस में. अब एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें. ये जो पॉइंट लास्ट में मेंशन है ये मैं सबसे पहले समझाना चाहूंगी बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि जितनी हाई जीडीपी होगी उतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा.
ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जितनी हाई जीडीपी है उतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है लोगों का। दूसरी चीज, फॉर लिविंग स्टैंडर्ड्स, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा रेलेवेंट होती है। जो जितनी भी कंट्रीज आपने देखी हमसे ऊपर, और इवन जापान की भी पर कैपिटा इनकम हमसे काफी ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कमाने की कैपेसिटी ऑन एन एवरेज, दैट इज पर कैपिटा इनकम। ऑलराइट, सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, यहां पे फैक्ट्स की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो जीडीपी का ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। जीडीपी बेसिकली, हमारी जीडीपी इन इंडिया बहुत सारे अच्छे कॉजेस की वजह से भी, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से भी बड़ी है। ऑलराइट, इंडियाज लेटेस्ट जीडीपी फिगर्स है, इंडियाज नॉमिनल जीडीपी इन 2025 इज $4.18 ट्रिलियन। आईएमएफ प्रोजेक्शन ऑफ 2026, आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि 2026 तक इंडिया की जीडीपी होगी $4.51 ट्रिलियन, और एक्सपेक्टेड जीडीपी बाय 2030 is $7.3 trillion, and expectedly अगर इतनी जीडीपी होती है then we are going to leave Germany behind and become the third largest economy. All right, so if that happens, so we are going to be the third largest economy in the world. Moving forward, let us talk about the Why has India become the fourth largest economy? जिन फैक्ट्स की हम बात कर रहे थे उसको डिटेल में समझते हैं। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों बनी है? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड अ की ग्रोथ ड्राइवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड होना, जितनी ज्यादा डिमांड होगी चीजों की एक कंट्री में उतनी ज्यादा ये जीडीपी आपका बढ़ेगा। प्लस नॉट ओनली जितनी ज्यादा डिमांड होगी, अंडरस्टैंड डिमांड क्यों हो रही है, बिकॉज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उतनी ज्यादा चीजें लोगों को चाहिए। ओके, सो रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड स्पेशली प्राइवेट कंजम्पशन इज अ मेन इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पॉपुलेशन is the main engine of India's economy. All right, India is largely a consumption driven economy, unlike export dependent nations. India एक consumption driven economy है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है? consumption driven मतलब जितना हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उतना हम कंज्यूम भी करते हैं। so consumption driven economy है, ना कि export dependent nations है। unlike export से नहीं हम लेते हैं, जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हम बनाते हैं, ठीक है। रूरल कंजम्पशन की ग्रोथ एक बार देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस हैज नंबर 1 इंक्रीज्ड रूरल इनकम्स, बूस्टेड डिमांड फॉर एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। लास्टली, अ लार्ज पॉपुलेशन बिकम्स एन एडवांटेज व्हेन कंजम्पशन राइजेस। जैसा कि मैं आपको शुरू से बता रही हूं, अ लार्ज पॉपुलेशन बिकम्स एन एडवांटेज जब कंजम्पशन राइज होता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंटर व्हिच इज लाइक इंपॉर्टेंट, व्हिच ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स। अब ऐसा नहीं है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स नहीं हुए हैं या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, काफी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और पॉलिसी इनिशिएटिव्स किए गए, जैसे लेबर रिफॉर्म्स, 4 लेबर कोड्स इंप्लीमेंटेड बाय 2025। इसका आउटकम सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, इंप्रूव वर्कर प्रोटेक्शन, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। अब लेबर कोड क्या था, रिफॉर्म क्या था, मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अर्लियर बहुत सारे डाइवर्स रिफॉर्म्स थे लेबर्स के लिए, बट इसके बाद, इस रिफॉर्म के बाद एक पर्टिकुलर लेबर रिफॉर्म हुआ जो एक एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी देता है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। ओके, देन देयर वर जीएसटी रिफॉर्म्स आल्सो, जीएसटी 2.0 रेशनलाइजेशन, टैक्स स्लैब, पुश टुवर्ड्स अ सिंपलर 2 रेट स्ट्रक्चर, okay, reduce logistics and compliance cost, we know it everything. GST जो rationalized tax slabs को हमने 2 ही tax slab में push किया, which was 5% and 18%. Structural reform improve long term growth capacity. Structural reform जो होते हैं improve करते हैं long term growth capacity को। Moving forward, let us talk about the third point, which is investment and manufacturing push. Investment भी हुई है, जैसे कि FDI, foreign direct investment जो होती है वो बाहर से country के अंदर कोई investment होती है, जैसे liberalization of FDI norms in insurance, defense or manufacturing improved the investor confidence as well. Then boost to manufacturing also, production linked incentive PLI schemes encourage domestic manufacturing in electronics, pharmaceuticals, renewable energy. India aims to shift from service led to balance growth. Moving forward, let us talk about the
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज ग्रोथ बैकबोन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स भी बहुत हुए, जैसे हाईवेज का बनना, रेलवेज का बनना, पोर्ट्स का, एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन होना, जिसका मेन फोकस था लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी पे, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। ऑलराइट, देन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी था, गवर्नमेंट लेड कैपेक्स क्राउड्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ, सो इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्ट्स ग्रोथ पोटेंशियल इनटू रियल आउटपुट। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पॉइंटर विच इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझते हैं। यंग पॉपुलेशन एडवांटेज, इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे मोर देन 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो 25। जो इंडिया की पॉपुलेशन इस समय है 50%, वो 25 साल से नीचे है। ऑलराइट, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस ग्लोबली वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है, विच जापान लैक्स, जापान डजंट हैव दिस। ओके, दिस इज अनदर इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर। जापान में रिटायर्ड लोग काफी ज्यादा हैं, एल्डरली पीपल काफी ज्यादा हैं, यंग लोग नहीं हैं, वर्किंग लोग नहीं हैं, इसीलिए इकोनॉमी इतनी ज्यादा ड्राइव नहीं हुई। बट इंडिया में यंग पीपल बहुत ज्यादा हैं, 25 ईयर्स से नीचे के लोग हैं 50%। सो अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका की डेटा ये है कि एवरेज एज जो है 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग इज 29 years ओनली, एंड मच लोअर देन यूरोप, जापान एंड चाइना। यूरोप, जापान, चाइना से बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब है इफ स्किल्ड एंड एम्प्लॉयड यूथ कैन सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्किल्ड और एम्प्लॉयड यूथ सस्टेन कर सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस बिहाइंड द बिग जीडीपी नंबर्स। अब पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। लो जीडीपी पर कैपिटा, इंडिया 2024 में ये पर कैपिटा इनकम जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा लो है, विच इज $2,694, वेराज जापान और जर्मनी की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो इट इज मच हायर देन इंडिया, $32,487, $56,103। सो पर कैपिटा इनकम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूथ है, जैसा कि मैंने आपको बताया 50% इज बिलो 25 ईयर्स। सो एजुकेटेड यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, स्किल मिसमैच है, ठीक है, अनइवन ग्रोथ, रीजनल एंड इनकम इनइक्वालिटी, रूरल अर्बन डिवाइड, रीजनल और इनकम इनइक्वालिटी है, प्लस रूरल और अर्बन में डिवाइड है, ठीक है, अभी भी रूरल पॉपुलेशन अलग है, अर्बन पॉपुलेशन अलग है, अलग अलग इनकम डिफरेंसेस हैं दोनों के। एक्सटर्नल रिस्क भी हैं, जैसे ट्रेड टेंशंस है, यूएस टैरिफ्स, आप सभी को पता होगा, ट्रम्प टैरिफ्स, रुपी डेप्रिसिएशन, रुपीज डेप्रिशिएटिंग, oil import dependence, a lot of oil is being imported. So India is a big economy but inclusive growth remains the key task. जो inclusive growth है वो एक key task रहता है, ठीक है। So we have covered the whole topic multidimensionally. Now I would like to ask you a question. What do you think is more important for a country? Is it GDP, gross domestic product, or is it GDP per capita income? Which one is more important for a country? Do let me know in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.